So, Bismillahirrahmanirrahim. So, our today's topic of discussion is hyperglycemia and diabetes. This lecture is more of clinically based. ये जो हम आज का lecture पढ़ेंगे ये clinically ज़्यादा based है. Although we'll study the biochemical mechanisms and the biochemical reactions, but this is more clinically. You will study this in your third year, fourth year, final year, in your FCPS, everywhere, as this diabetes mellitus is very common. This condition is very common. It is the most common endocrine disorder. We will study this here. This is the most common endocrine disorder. हमारे घर में आसपास कोई ना कोई डायबिटिक का पेशेंट ज़रूर मौजूद होता है. सो हाउ टू अप्रोच दैट डायबिटीज़. और ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो घर में किसी को डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ उसकी कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डायबिटीज़ की, डायबिटिक मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, और वाई दिस डायबिटीज़ इज़ वेरी मच प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ये डायबिटीज़ क्यों इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है, और क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या कोई सर्जरी में पेशेंट आए फॉर द लेप्रोस्कोपी, फॉर द कोलिसिस्टेक्टमी, फॉर द लैप कोली, फॉर द लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी और द फॉर द ऑपरेशन ऑफ हर्निया विद डायबिटीज़, क्या हमारी उसकी तरफ अप्रोच डिफरेंट होगी, क्या वो उसको हम अप्रोच और मैनेज डिफरेंट करेंगे. क्या एक पेशेंट आता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट, फॉर द सर्जरी ऑन द आई, फॉर द लेंस प्लेसमेंट इन द आई, और एंड ही इज़ डायबिटिक. सो क्या हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन प्रोसीजर है, विल इट बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर्स, वो क्या डिफरेंट होगा, क्या हमारी उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as this condition is very prevalent. So a strong clinical background knowledge of this condition is required. So we will study this inshallah. So contents of our today's lecture, it's hypoglycemia. Hypoglycemia is also a clinically important condition. How, why this is important, we will study this in next few slides. Hypoglycemia, symptoms of hypoglycemia. What are the different types of hypoglycemia? We have different types, and the very important glucoregulatory systems. What are the different glucoregulatory systems that are regulating the glucose within the body, that are regulating the glucose within the body. And the most important that is diabetes mellitus. What is the diagnostic criteria? What is the WHO, World Health Organization, and ADA, that is American Diabetic Association diagnostic criteria for diabetes mellitus? We will study the types of diabetes mellitus. Then we will study the biochemical basis of micro and macrovascular complication of diabetes mellitus. So डायबिटीज मेलाइटिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइनोलॉजी. डायबिटीज मेलाइटिस जो आपका टॉपिक है ये एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक है. यू हैव एंडोक्राइनोलॉजी इन फिजियोलॉजी एज वेल एज यू हैव एंडोक्राइनोलॉजी इन बायोकेमिस्ट्री. So we will study only those aspects of diabetes that are very necessary or that are included in carbohydrate metabolism. जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्ट्स इसका इंक्लूडेड है वो हम पढ़ेंगे, और जर्नल में आपको इसका डायबिटीज के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा. और जो इसकी टाइप्स की डिटेल्स हैं कि व्हाट आर द बायोकेमिकल बेसिस, यू विल स्टडी दैट इन डेप्थ इन endocrinology. Endocrinology is a part of physiology as well as biochemistry. So it's clinically important. Diabetes is clinically important. So first topic is hypoglycemia. As the name shows, hypo means low, glycemia means low blood glucose level. So hypoglycemia basically means low blood glucose level. So hypoglycemia is a condition in which blood sugar, yeah, blood glucose level is lower than the normal. Blood sugar level is lower than the normal. So what is the normal? So a blood sugar level less than 140 milligram per deciliter or 7.8 millimole per liter is normal. So these values are very important. Remember, these values are very important for the diagnosis of diabetes. You must know these values. आज के लेक्चर में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपको हाथ पे आनी चाहिए. नॉट फॉर योर सेकेंड एग्जाम, पर फॉर योर होल लाइफ. ये आपकी पूरी जिंदगी में काम आनी है. So blood sugar level less than 140 milligram per deciliter is normal. 7.8 millimole per liter. So hypoglycemia is characterized by triad of symptoms. Triad means three things. It is a triangular having three corners. So three corners जब meet करते हैं तो hypoglycemia का definition हमारे पास आती है. जब three corners हमारे पास होते हैं या three things हमारे पास होती हैं तो we say that this is hypoglycemia. What are these things? A simultaneous blood sugar level equal to or less than 40 milligram per deciliter. Although hypoglycemia starts below 70 milligram per deciliter. We will study in next few slides. Hypoglycemia starts below 70 milligram per deciliter, but it is the symptomatic
symptomatic hypoglycemia that is below 40 milligram per deciliter, that is below 40 milligram per डेसीलीटर. ये लेवल आफ्टर फीडिंग होता है नॉर्मल, नॉर्मल लेवल, नॉट आफ्टर फीडिंग, इट इज अ नॉर्मल लेवल. नॉर्मल आफ्टर फीडिंग और इवन के फास्ट जो भी हो, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140. We will study this, don't worry. So a simultaneous blood sugar level equal to or less than 40 milligram per deciliter. CNS symptoms very important. This is why hypoglycemia is very important clinically, because hypoglycemia is associated with CNS symptoms. As I have already told you many times that brain require continuous supply of glucose. So in hypoglycemia, when glucose levels in the body are low, in hypoglycemia the blood glucose levels in the body are low, so the delivery of glucose to the brain is less. The delivery of glucose to the brain is less. So for the brain cells do not remain viable. उनकी viability के उनको continuous supply of glucose चाहिए होती है for their continuous working, and on their continuous functioning they require continuous supply of glucose. So in case of hypoglycemia, there are CNS symptoms. What are these symptoms? Confusion, aberrant behavior, or coma. It can even result in death. So CNS symptoms. And the third is symptoms being resolved within minutes after administration of glucose. This third corner, the three corners, that simultaneous blood glucose level equal to or less than 40 milligram per deciliter, CNS symptoms including confusion, aberrant behavior, coma, anxiety, depression, or death. It can lead to death, and the symptoms being resolved within minutes. सो जो सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, हाइपोग्लाइसीमिया डायग्नोस हो जाए, ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम आ रही हो, तो उसको फॉर ओरल हम दे देते हैं, या फिर ओरल या पैरेंट्रल. पैरेंट्रल मीन्स अवे फ्रॉम द माउथ. आईवी लाइन है, इंट्रामस्कुलर है, सबकुटेनियस है, तो हम उसको ग्लूकोज देते हैं, सो उसका हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाता है. सो दिस इज हाइपोग्लाइसीमिया. A simultaneous blood sugar equal to or less than 40 milligram per deciliter, CNS symptoms, confusion, aberrant behavior or coma, and symptoms being resolved within minutes following administration of glucose. So it is a medical emergency. Why it is a medical emergency? It is a medical emergency because of the CNS symptoms. CNS symptoms. It can result in brain death. So it is a medical emergency. So severe prolonged hypoglycemia can cause brain death. Severe prolonged hypoglycemia can cause brain death. So there are multiple mechanisms. So Allah Ta'ala has multiple mechanism in the body to prevent or to correct hypoglycemia. To prevent or to correct hypoglycemia. So Allah Ta'ala has multiple mechanism in the body. So as you know that everything is regulated within the body. A body is a perfect example of a regulatory system. एक बॉडी के अंदर perfect example है कि हर चीज रेगुलेशन हो. So when there is hypoglycemia, there is regulation. So when this regulatory influences are blocked, then hypoglycemia results. Then hypoglycemia result, and the patient presents in the emergency department with symptom CNS symptoms. So it is a medical emergency. Patient presents in the emergency department. So it is a medical emergency. So what are the symptoms of hypoglycemia? So what are the different symptoms of hypoglycemia? You can see in the diagram, the cartoonic representation. There is shaky. The person is shaky. There is continuous tremors. There is continuous tremors. The fast heartbeat. The tachycardia. Sweaty. There is a lot of sweat. What is the biochemical basis of these symptoms? We will study. Dizziness or shaky because of CNS symptom. You can see from his eyes, from his posture, the dizziness, shaky, anxious, hungry, blurry vision, nervous or upset. There is nervousness in hypoglycemia. You have seen that in case in fasting during Ramzan, स्पेशली ओल्ड पीपल इन योर होम, वो नर्वस हो जाते हैं, अपसेट, और वो गुस्सा करने शुरू हो जाते हैं, जो रमजान में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया. उनका कोई कसूर नहीं, बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग hypoglycemia. So they are nervous, they are upset, there is headache because seen it, weak or tired, they are fatigued, there is fatigue. So again you can see in the below diagram, they're hungry, confused, headache, sweaty, shaky. So these are the symptoms. So we classify the symptoms of hypoglycemia into two categories. We classify the symptoms of hypoglycemia into two broad categories: the adrenergic symptoms and the neuroglycopenic symptoms. The adrenergic symptoms and the neuroglycopenic symptoms. I repeat again, the adrenergic symptoms and the
Glycopenic symptoms. The adrenergic symptoms. The adrenergic symptoms are adrenerge mean gland. These are because of hormones. Adrenergic symptoms are through adrenal medulla. You see adrenergic, the adrenal medulla. This is through hormones. So these are anxiety, palpitations, tremor, sweating. You can see the first, there is tremor, shaky, anxiety, this is anxious, sweaty, tremor. बिकॉज इन हाइपोग्लाइसीमिया अल्लाह ताला, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, ग्लूको रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, उसमें कैटाकोलामीन्स होते हैं. जब हाइपोग्लाइसीमिया तो बॉडी में कैटाकोलामाइंस जो होते हैं, कैटाकोलामीन्स जो होते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, वो स्क्रीट होते हैं एड्रीनल मेडुला से. अब इस एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, स्वेट ग्लैंड्स पे होते हैं और ब्रेन में होते हैं, डिफरेंट जगह पे होते हैं. सो हाई लेवल और हार्ट पे होते हैं, और हाई लेवल ऑफ कैटेकोलामीन्स रिजल्ट इन palpitations, that is heart, high heartbeat, anxiety, tremor, sweating. So it is adrenergic symptoms are mediated by catecholamines. So they are regulated by hypothalamus. So hypothalamus has receptors that detect the low blood glucose level. जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होती है, हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, जो सिग्नल्स देते हैं किसको, एड्रीनल मेडुला को. जो एड्रीनल मेडुला को सिग्नल्स देते हैं कि कैटेकोलामीन्स रिलीज करो. कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं टू करेक्ट द हाइपोग्लाइसीमिया, बट उसके साथ कैटेकोलामीन्स मीडिएटेड सिम्टम्स होते हैं. कोई आपसे पूछे हाइपोग्लाइसीमिया कौन से सिम्टम्स होते हैं, एड्रेनर्जिक. सो दीज टिपिकली अकर व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स अब्रप्टली, व्हेन सडन एकदम जब ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल करता है ना, तब एड्रेनर्जिक सिम्टम्स आते हैं. अब हमारे पास है न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स. न्यूरो मीन्स ब्रेन, ग्लाइकोपेनिक मीन्स लो ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो दीज सिम्टम्स आर CNS symptoms that are due to low blood glucose level, and hence resulting low blood glucose or the low glucose delivery to the brain cells. इसमें ब्रेन सेल्स को ग्लूकोज की डिलीवरी की नहीं हो पा रही, कम ग्लूकोज मिल रही है, उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे वो न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स होंगे. जो हाइपोथैलेमस मीडिएटेड सिम्टम्स होंगे, जो हाइपोथैलेमस एड्रीनल मेडुला को स्क्रीट करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे हाइपोग्लाइसीमिया से, वो कौन से होंगे, वो एड्रीनर्जिक होंगे. वो सडन एब्रप्टली एकदम जैसी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है उसमें आते हैं. न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स जो होते हैं, ये हमारे पास किस में आते हैं, ये हमारे पास ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, आहिस्ता 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 ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्लाइन करता रहता है. सो उसकी वजह से आते हैं हमारे पास. और जो वाई द स्लो डिक्लाइन डिप्राइव्स द CNS ऑफ द फ्यूल बट फेल्स टू ट्रिगर एन एडिक्वेट एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स. सो जो हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन देयर इज अब्रप्ट फॉल ऑफ ब्लड ग्लूकोज. सो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जब हमारे पास ब्रेन सेल्स को कम ऑक्सीजन मिलती है, तो CNS सिम्टम्स आते हैं जिनको हम न्यूरोग्लाइकोपेनिक, एज द नेम शोज, न्यूरोग्लाइकोपेनिक. सो व्हाट आर दीज आर हेडेक, confusion. You can see from the below diagram, headache, confusion, slurred speech, seizures, coma, and they can even result in death. So there are two broad categories of hypoglycemic symptoms. So we have studied the biochemical basis of these symptoms too. So now the glucoregulatory systems. So the glucoregulatory system, as I've already told you, there is a regulation of the blood glucose level. So when there is low blood glucose level, there are certain systems that become activated within the body. There are the certain systems that become activated in the body to correct that blood glucose level. So there humans have two overlapping glucoregulatory systems that are activated by hypoglycemia. जब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, दो सिस्टम्स होते हैं, आई रिपीट, दो सिस्टम्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं. एक होता है पैंक्रियाटिक अल्फा सेल सिस्टम, पैंक्रियाटिक अल्फा सेल्स विच सिक्रीट ग्लूकागोन, पैंक्रियाटिक अल्फा सेल्स विच सिक्रीट्स ग्लूकागोन. हमने पढ़ा था कि अल्फा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज जो होते हैं वो ग्लूकागोन को रिलीज करते हैं, और ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है. हमने पढ़ा था ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को करता है. ये दोनों मैकेनिज्म बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे थे, ये दोनों मैकेनिज्म बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ा रहे थे. सो हाइपोग्लाइसीमिया में ये एक सिस्टम है, पैंक्रियाटिक अल्फा सेल सिस्टम, विच रिलीजेस ग्लूकागोन. The next system is basically hypothalamus related. As I've already told you, receptors in the hypothalamus which respond to abnormally low levels of blood glucose concentration. So when there is low level of blood glucose within the body, the receptors, you will study the details of these receptors, what are these receptors, what are the nuclei that regulate these receptors in the neuroanatomy and neurophysiology. So the receptors in the hypothalamus become activated by low levels of blood glucose concentration. जब हाइपोथैलेमस लो लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन से ये रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं, व्हाट दे कॉज, दे ट्रिगर बोथ द सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइंस एंड रिलीज ऑफ ACTH.
हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है एड्रीनल मेडुला को कैटेकोलामाइंस, जो हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन है वो स्क्रीन करो। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे के पास होता है एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करो और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। तो हमारे पास जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एक अल्फा सेल से ग्लूकागोन बाहर आ गया, कोर्टिसोल बाहर आ गया, एसीटीएच से, एसीटीएच जाके एडिनोकॉर्टेक्स पे ऐड करेगा, कोर्टिसोल बाहर आ गया, ग्रोथ हार्मोन बाहर आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एसीटीएच बाहर आ गया, कैटेकोलामीन बाहर आ गया एड्रीनल मेडुला से। सो दीज आर कॉल्ड एज ग्लूको रेगुलेटरी हार्मोन्स। दीज फोर हार्मोन्स वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता होता है इन लिस्ट, ग्लूको रेगुलेटरी हार्मोन्स। दीज फोर हार्मोन्स glucagon, catecholamines, cortisol, growth hormone are called the counter regulatory hormones because they opposes the action of insulin on glucagon use. See the above diagram, this diagram. You can see on the left side it is insulin and on the right side it is glucagon, growth hormone, cortisol and epinephrine. In case of hypoglycemia, this balance is shifted towards the right. So these four hormones काउंटर रेगुलेट द एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन द ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के सेल में लेके जाती है। इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। इट इज सिक्रेटेड इन केस ऑफ वेल फेड स्टेट व्हेन वी हैव टेकन अवर डाइट। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद इंसुलिन सिक्रेट होती है ताकि वो पकड़ पकड़ के इसको लेके जाए सेल्स के अंदर। और बाकी हार्मोन्स हाइपोग्लाइसीमिया में सिक्रेट होते हैं जो इंसुलिन के एक्शन को काउंटर करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। सो ये आप इस बॉक्स में देख रहे हैं, एक्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि क्रॉस, एक्स का मतलब है एक्टिवेट्स, नीचे यहाँ लिख भी दिया, एक्स मींस एक्टिवेट्स। सो एपिनेफ्रिन जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, कोर्टिसोल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ग्लूकागोन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। क्या मतलब है कि इंसुलिन की रिसेप्टर पे जाके या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं कि इंसुलिन अपना काम ना कर सके। अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए ये हार्मोन्स, ये तीन, सो हमारे पास डायबिटीज हो जाती है क्योंकि अब इंसुलिन काम नहीं कर पाती, ब्लड ग्लूकोज बढ़ती रहती है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज। वी विल स्टडी दिस। और बाकी आपको इन सारे हार्मोन्स का पता होना चाहिए। अब एपिनेफ्रिन जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, एपिनेफ्रिन लिपोलिसिस को स्टिमुलेट करता है, एपिनेफ्रिन इंसुलिन के एक्शन को इनहिबिट करता है। इस तरह कोर्टिसोल जिन हमने पढ़ा था असाइनमेंट में दी थी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करते हैं। सो आपने सबमिट भी की, उसमें लिखा था कि दे स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। जो बॉक्स खाली है वहां पे मतलब उस हार्मोन का एक्शन नहीं है। दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंडोक्राइनोलॉजी। So these are counter regulatory hormones. So this slide is again very important, the hypoglycemic thresholds. As I've already told you, ये आप लोगों को आनी चाहिए सारी values. So जब blood glucose level आहिस्ता आहिस्ता when the blood glucose level starts falling, so there are different levels at which different things occur. हर चीज का, हर हार्मोन की रिलीज का या हर सिम्टम का एक लेवल है जिस लेवल पे वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, इस या वो चीज होना शुरू होती है। इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक थ्रेशोल्ड्स। सो जब देखें ऊपर से ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे कम आनी शुरू हुई, कम आनी शुरू हुई, सो 82.8 मिलीग्राम। सो दीज आर मल्टीपल एमसीक्यूज एज वेल एज, एंड दिस होल डायग्राम इज अ एससीक्यू इटसेल्फ। सो जब 82.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे आई ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इंसुलिन की एंडोजिनस प्रोडक्शन जो बॉडी के अंदर होती है वो इनहिबिट होगी, क्योंकि इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है। सो इसकी प्रोडक्शन कम होगी ताकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम ना करे, आगे ही कम हो गया है 82.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब और कम होते जाते हैं तो मैंने आपको बताया 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे हाइपोग्लाइसीमिया स्टार्ट हो जाता है, बट इट इज नॉट सिम्टोमेटिक। तो 70 से लेकर 40 तक हमारे पास जो बेसिकली होता है वो रेगुलेशन होती है बीच में। अब ये रेगुलेशन जो हमारे पास हो, अगर सही ना हो पाए, इफ दिस रेगुलेशन इज नॉट रेगुलेटेड, अगर ये रेगुलेशन ना हो पाए सही तरह, फिर हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट के हमारे पास 68.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे क्या होगा, देयर विल बी द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। 68.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे क्या होगा, देयर विल बी द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। और फिर क्या होगा 66.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे क्या होगा, एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। 57.6 पे क्या होगा, कोर्टिसोल। सो दी ग्लाइसेमिक थ्रेशोल्ड्स ऑफ दीज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर करते करते देखें 50 पे या 40 पे जाके हमारे पास सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या एमसीयू के 27 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे कोमा सीजर्स के सिम्टम आ जाएंगे।
तो 27 इज द लोअर लिमिट there because at 30 or 20 to 30 milligram per deciliter there is severe neuroglycopenic symptoms, the CNS symptoms occur, the cognitive dysfunction occur at 48 6.8 milligram per deciliter. So this is the blood glucose levels at which different things occur. So these are hypoglycemic thresholds. Question आएगा illustrate, मेरा भी आया था, illustrate the hypoglycemic thresholds of different hormones. So this is given in Lippincott also. थोड़ी बहुत उसमें है ना, उसने exact values नहीं लिखी तो मैंने आपको exact values बता दी, Lippincott में diagram बनी हुई है. हाँ, तो आप लोगों ने जो hypoglycemia है ये chapter 23 Lippincott का है, chapter 23 Lippincott का है, insulin and glucagon. Insulin, you will study insulin and glucagon in endocrinology. As I've already told you, there is section of endocrinology in biochemistry as well as physiology. So you will study the hormones in endocrinology, but the hypoglycemia is the part of carbohydrate metabolism. So hypoglycemia is written in chapter 23 Lippincott, and diabetes mellitus is written in chapter 25 Lippincott. Chapter 25 Lippincott. So these are hypoglycemic thresholds. So what are the different types of hypoglycemia? There are the 4 types of hypoglycemia. So here again the symptoms: irritable, fast heartbeat, sweating. So what are the different 4? There are 4 types. This is the insulin-induced hypoglycemia. We have postprandial hypoglycemia. We have fasting hypoglycemia, and the last one is very important. That is alcohol-related hypoglycemia. The first one, that is insulin-induced hypoglycemia. It is the most common type of hypoglycemia. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन लगाते हैं, वो इंसुलिन अपनी सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं. सबक्यूटेनियस कहते हैं विद इन द स्किन, विद इन द स्किन, वो स्किन को ऐसे पिंच करके उसके अंदर वो इंजेक्शन लगाते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंसुलिन का लगाते हैं. सो वो इंसुलिन जो होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है डायबिटीज़ के अंदर, उसको कम करती है. अब किसी पेशेंट ने इंसुलिन ज़्यादा लगा लिया, इंसुलिन रेगुलेटेड अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में लगानी पड़ती है उसको पेशेंट्स को. अब किसी ने बेदहानी में या किसी पैरामेडिक स्टाफ ने या फिर किसी हॉस्पिटल स्टाफ ने उसको ज़्यादा लगा दिया, या उसने हाइपोग्लाइसेमिक जो इंसुलिन के लिए जो डायबिटीज़ के लिए ड्रग्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, वो ज़्यादा खा ली उसने, उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गई है. सो दिस इज़ द इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया. ये डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है, seen in patients who are receiving insulin. So it is the most common form. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया इन कॉन्शियस पेशेंट इज ट्रीटेड बाय ओरल ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन. सो देखें, डायबिटीज़ है, बंदे को पहली हाइपोग्लाइसीमिया, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा जाके कम होगी. अब माइल्ड है और कॉन्शियस है पेशेंट, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया और बंदा कॉन्शियस है, उसको थोड़े सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम ओरल ग्लूकोज दे देते हैं. और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट कैन नॉट टेक ओरल फीड, ओरल वो अनकॉन्शियस होगा तो ओरल वो नहीं ले सकता. तो हम उसको किस तरह देंगे? उसको हम क्या करेंगे? ग्लूकागोन देंगे सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली. ग्लूकागोन क्या करेगा? इट विल कंट्रैक्ट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इट विल counteract the action of insulin. So what is the postprandial hypoglycemia? Postprandial hypoglycemia is also called as reactive hypoglycemia. Postprandial hypoglycemia is also called as reactive hypoglycemia. It is the second most common form. The first most common form is insulin-induced hypoglycemia. So plasma blood. So postprandial hypoglycemia is not dangerous because plasma blood glucose level returns to normal even if the patient is not fed. Even if the patient knows, it is not that much dangerous. The only treatment, अच्छा postprandial hypoglycemia का ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स ले बंदा, मतलब थोड़ा थोड़ा खाए, दो एक घंटे बाद थोड़ा खा ले, फिर थोड़ा खा ले, बजाय इसके कि ब्रेकफास्ट करे, लंच करे, डिनर करे, 3 दफ़ा ही पेट भर के ज़्यादा सारा खा ले, क्योंकि जब ज़्यादा सारा खा लेगा तो ज़्यादा सारी उसके अंदर ग्लूकागोन रिलीज होगा. इसके अंदर बेसिकली ना सेंसिटिविटी जो होती है हार्मोन्स की वो खराब होती है. अब वो ज़्यादा सारा खाएगा, एकदम इतना ज़्यादा ग्लूकागोन रिलीज हो जाएगा तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ जाएंगे पोस्टप्रेंडियल. अब वो खाना जब अब्जॉर्ब हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो ग्लूकागोन का रिलीज कम हो जाएगा, सो ये हाइपोग्लाइसीमिया खुद ही जो है वो रिजॉल्व हो जाता है. ऑल्दो इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन बट इट इज नॉट वेरी डेंजरस, क्योंकि खुद ही ठीक हो जाता है. इसका यही हल है कि बंदा जो है फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स ले देन यूजुअल 3 लार्ज मील्स. सो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रमज़ान करीम चल रहा है तो इसके अंदर हमारे अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है वो कौन सा होता है? फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया. बट खाना खाने से करेक्ट हो जाता है. सो देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग डिसऑर्डर इन फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया.
फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? जब फास्ट चलता ही जा रहा है, बंदा खा भी रहा है फिर भी चलता ही जा रहा है, उसकी फास्टिंग अंदर चलती जा रही है। कैसे? रेयर टाइप है, मोर लाइकली टू प्रेजेंट एज सीरियस इमरजेंसी बिकॉज इसका इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है अंदर ग्लूकोरेगुलेटरी सिस्टम्स के अंदर, दिस इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। हम बाहर से जितना मर्जी करेक्ट कर लें हाइपोग्लाइसीमिया, वो करेक्ट नहीं होता। So neuroglycopenic symptoms predominate, as I've already told you, CNS symptoms. So it is seen in hepatocellular damage. क्यों? Because we know that glycogenolysis and gluconeogenesis are occurring in the liver. So when there is hepatocellular damage and there is hypoglycemia, the hypoglycemia cannot be corrected. When there is adrenal insufficiency, catecholamines, epinephrine release नहीं होगा. Fasting individuals, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कोई हमारे पास हार्मोन डेफिशिएंट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, कोई सॉरी एंजाइम, कोई हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस का एंजाइम के अंदर म्यूटेशन है, कोई इनबोर्न, इसके कहते हैं इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कोई मेटाबॉलिक पाथवे खराब है। और फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है जी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, वी विल स्टडी दिस इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, उसमें भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है। और डिफेक्ट्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और ट्यूमर ऑफ इंसुलिन, इसको कहते हैं इंसुलिनोमा। Insulin is secreted by beta cells of pancreas. Insulin is secreted by beta cells of pancreas. और अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, एक ट्यूमर होता है बीटा सेल पैंक्रियास, कहते हैं इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा, उसमें ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। अब ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो वो उठा उठा के ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके जाएगी, तो वापस fasting hypoglycemia. There is some intrinsic defect in the glucoregulatory systems in the fasting hypoglycemia. So the fourth one is more very important from exam point of view. This is alcohol related hypoglycemia. This is favorite of biochemistry department. So what is alcohol related hypoglycemia? So remember, see this top diagram on the right side, कि alcohol जो है, when we take alcohol that's ethanol, that is converted into acetaldehyde by alcohol dehydrogenase, by अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एसिटाल्डिहाइड में बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। तो इथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाल्डिहाइड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस विद द प्रोडक्शन ऑफ NADH, विद द प्रोडक्शन ऑफ NADH। यहाँ NAD पॉजिटिव यूज हुआ और NAD प्रोड्यूस हो गया। फिर देन एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू acetate, then acetaldehyde is converted into acetate by acetaldehyde dehydrogenase, then there is again production of NADH. So two enzymes are involved in the metabolism of ethanol. The metabolism of ethanol is occurring within the liver. The metabolism of ethanol is occurring basically majorly within the liver. Ethanol is converted to acetaldehyde, then acetaldehyde is converted into acetate. So at both steps there is production of NADH. So जो बंदे अल्कोहल ले रहे होंगे उसके अंदर NADH और NAD पॉजिटिव, NADH बाय NAD पॉजिटिव रेशियो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि NADH प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। अब हमने पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस में कि मैलेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम था, ये देखें इस डायग्राम में लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम पे, ये हमारे पास मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में। किसके अंदर? मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये एंजाइम था। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें NAD पॉजिटिव यूज हो रहा होता है और NADH बन रहा होता है। अब NADH ज्यादा बन गया हमारे पास अल्कोहल में, वो इस स्टेप को इनहिबिट कर देगा। और दूसरी क्या रीजन है कि NAD पॉजिटिव ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में, वो माइलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि पायरुवेट की कन्वर्जन होती है लैक्टेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, वहां पे भी NAD पॉजिटिव यूज हो रहा होता है और NADH यूज हो रहा होता है और NAD पॉजिटिव बन रहा होता है। Pyruvate is converted into lactate by using NADH. We have studied this and NAD positive was synthesized. अब बॉडी में ज्यादा NADH प्रेजेंट है, बॉडी में ज्यादा NADH प्रेजेंट है, सो ये रिएक्शन स्टेप जो है इनहांस हो जाएगा। जब ये रिएक्शन इनहांस हो जाएगा तो पिछले सारे स्टेप्स को इनहांस कर देगा। मतलब अब पायरुवेट की कन्वर्जन लैक्टेट में ज्यादा हो रही है तो पीछे से सारे स्टेप्स इनहांस हो जाएंगे और ग्लाइकोलिसिस इनहांस हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस एक तरफ इनहांस हो रही है और दूसरी तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो रही है। ग्लूकोज ज्यादा कैटाबोलाइज्ड हो रही है और एनाबोलाइज्ड कम हो रही है, सिंथेसिस ग्लूकोज की कम हो रही है और डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है। So this will result in hypoglycemia. So what is the biochemical basis of hypoglycemia? This is as hypoglycemia in alcohol. Alcoholism leads to high NADH in the body. This high NADH inhibits gluconeogenesis and glycogenolysis. So it will result in severe hypoglycemia by inhibiting gluconeogenesis and stimulating the glycolysis. It will also result in lactic acidosis as it increases the conversion of pyruvate to lactate.
उसके अलावा हाई एनएडीएच एनएडी पॉजिटिव वी विल स्टडी दिस इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इनहिबिट फैटी एसिड ब्रेकडाउन। फैटी एसिड ब्रेकडाउन को कम करती है और फैटी एसिड सेंसेस ज्यादा करती है, जिसकी वजह से फैटी एसिड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग विद इन द लिवर एज दिस मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल इज बेसिकली मेजरली अकलिंग इन द लिवर। और लिवर में ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो रही होती है और लिवर में ही हमारे पास ग्लूकोनिजेनेसिस हो रही होती है। सो दिस रिएक्शंस आर अकरिंग साइड बाय साइड, साथ ही हो रहे होते हैं। अल्कोहल की जो एनएडीएच ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो इन स्टेप्स को इनहिबिट करेगी और फैटी एसिड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग विद इन द लिवर। Fatty acid starts accumulating within the liver. This is called as steatosis. This is called as steatosis. Very common. आपने पढ़ा होगा कि फैटी लिवर डिजीज होती है अल्कोहलिज्म में। So last thing, this acetaldehyde dehydrogenase. This acetaldehyde dehydrogenase is inhibited by disulfurium drug. It is inhibited by, you can see in the red, disulfurium drug. So for the treatment of alcoholism, we give disulfurium. For the treatment of alcoholism, what is the drug for treatment? आप थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में आगे पढ़ते रहेंगे. So what is the, that is disulfurium.